Hello student, you are welcome in our SSC class. I am Maafi Bhargava and SSC से today we will continue our chapter number 5 नेचर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे। तो वाइल्ड लाइफ में हमने देखा था कि यहाँ पर कम से कम जो 90,000 से एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं और उसमें लगभग बर्ड्स की 2,000 स्पीसीज पाई जाती हैं और फिशेस की 2,548-46 स्पीसीज पाई जाती हैं। लगभग वर्ल्ड की 5-6% 12% पार्ट होती हैं। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो लॉयन और टाइगर दोनों की स्पीसीज पाई जाती हैं और एलिफेंट भी पाए जाते हैं हर जगह पर, और शीप भी पाई जाती हैं। मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग, वेजिटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पाया जाता है। यदि हम यहाँ देखें तो रिवर भी पाई जाती है, रिवर भी बहुत सारी होती हैं। रिवर के आसपास का जो वेजिटेशन होता है वो बहुत ही अच्छा वेजिटेशन होता है। यदि हम रिवर में देखें, इन द रिवर लेक द कोस्टल एरियाज द टर्टल्स क्रोकोडाइल एंड द वेरियस आर फाउंड एंड द later is the only the representative of variety of the crocodile found in the world today. The bird life in India colored and peacock, plateau duck, crane, pigeon are some of the birds inhabited the forests and the wetlands of the country, and we have selected our crop from the biodiverse environment and have forested the reserve of the edible plant. And we also experimented that the many medical plants and animals were selected from the large stock provided the natural and the milk animal, and they also provided as the power in the transportation, meat and the eggs, and the fish provided the nutritive food, and many insects helped the pollination of the crop and fruit trees, and the spreading the biological control on such insects are harmful. Every species has a role to play in the ecosystem, hence the conservation is the essential. And as has been mentioned earlier, due to the excessive exploitation of the plant and the animal resources by the human being, and the ecosystem has been disturbed. About the 1,300 plant species and endangered to the 20 species are extinct, and the quite in a few species are also be endangered, and some of having become the extinct. The main causes of this, the major threaten in the natural hunting by the greedy hunters and commercial purpose pollution due to the chemical and industrial waste, acid deposit, and the introduction to the alien species are the reckless cutting to the forest and bring land under the cultivation, and the habitation are also be responsible for the imbalance and the protect the flora and fauna in the countries. The government has taken the many steps. The 18 biosphere reserve have been set up to the country and protect the flora and fauna, and these the Sundarbans, Nanda Devi, Gulf of Mannar, and Nilgiri, Nekrek, Great Nicobar, and Manas, Simplipal, and Pachmari, and Achanakmar, and Amarkantak have been included the world network of the Biosphere Reserve. यदि हम देखें तो जो बर्ड लाइफ है हमारी इंडिया में वो बहुत ही कलरफुल है, जिसमें जो पिकॉक है बहुत ही कलरफुल बर्ड माना जाता है, और जो क्रेन्स हैं और पिजन हैं यहाँ पर बहुत अधिकता में पाए जाते हैं। और यदि हम यहाँ की क्रॉप को सेलेक्ट करें तो जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्लेजेंट है, और यहाँ के जो रिवर हैं उसमें एडिबल प्लांट को लगाया जाता है, उसके आसपास एडिबल प्लांट को लगाया जाता है ताकि वो हमारे डेली यूज़ में आ जाए। और कुछ मेडिसिनल प्लांट है जिनको ग्रो कराया जाता है जो कि मेडिसिन में हेल्प करते हैं। कुछ नेचुरल मिल्क एनिमल भी यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें हमको, मीट है, एग है, वो प्रोवाइड कराते हैं। कुछ फिश जो है उसको भी न्यूट्रिटिव फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। कुछ इंसेक्ट है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और क्रॉप में, और कुछ फ्रूट है, कुछ ट्रीज़ है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इकोसिस्टम में। इसका कंजर्वेशन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि हमने इनको कंजर्व नहीं किया गया तो एक ना एक दिन ये पूरे
ख़त्म हो जाएंगे, हमारी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें लगभग 1500 प्लांट पाए जाते हैं। उनमें भी कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं, लगभग 20 ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब कि धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर आ गई हैं। क्योंकि यदि हम उनको अभी भी रिजर्व नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो एक न एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगी। कुछ को इंडेंजर में रखा है, मतलब कि वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, भविष्य में उनके ऊपर खतरा है कि वो ख़त्म हो सकते हैं। और उनका मेन कॉजेज हम देखेंगे तो थ्रेटन नेचर है, और शिकार जो है मेन इसका कारण है, क्योंकि कुछ लोग अपने पर्पज़ के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, उनकी स्किन के लिए या फिर कुछ अदर फ़ायदे के लिए इनको हंटिंग करते हैं और शिकार करके उनको ख़त्म कर देते हैं। और धीरे धीरे इनकी जो स्पीसीज़ है वो कम होती जाती है। इसके लिए ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके इन्वायरमेंट के इम्बैलेंस बनाने के लिए हमें अपने फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, और 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि हमारे यहाँ पर सेटअप किए गए हैं। उसमें कुछ फ्लोरा और कुछ फना है। यदि उनमें से हम देखें 10, उनमें से कौन कौन से? सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नेक रेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिम्पलीपाल है, पचमढ़ी है और अमरकंटक है। इस बार जो बायो रिजर्व है वो कर दी गई। इट्स एनफ फॉर टुडे। वी हैव completed this chapter here and we will start new chapter tomorrow. Thank you so much.